कल आईएससी अकाउंट्स का पेपर हुआ, इजी आया, झूठ नहीं बोलूँगा, इजी आया, पेपर अच्छा गया है। ठीक है, लगभग मेरे सारे स्टूडेंट्स का पेपर बहुत बहुत अच्छा गया है। अब 27 फेब को कॉमर्स का पेपर है। ठीक है, तो बच्चे, अगर उनको ये डाउट है कि केस बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं या कैसे होगा, ठीक है, तो प्लीज़ कुछ भी मत करो। सब बच्चों को मैं एक चीज़ बोलूँगा, कुछ भी मत करो स्टार्टिंग से। अगर कॉमर्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, अगर आप लोगों के अकाउंट्स मैथ्स थी नहीं पढ़े हुए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जस्ट मुझे एक बार देखते चलो। हाँ, ठीक है, जस्ट मुझे एक बार देखते चलो अच्छे से। उसके बाद जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना, ये वाले, इनको देखते चलना बस। मैं आपके केस बेस्ड भी करवा दूंगा सारे, या एमसीक्यूज हो गए, या डायरेक्ट हो गए। ये सारे क्वेश्चंस इसमें हो जाएंगे, जिसमें हम कहते हैं ना एप्लीकेशन बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड। ठीक है, ये सारे हम कर लेंगे। मैं शाम को एक क्लास लूँगा जिसमें मैं स्टार्टिंग से सारा का सारा आपको पूरा एक बार सारे नोट्स से रिवाइज भी कराऊंगा, बुक से भी कराऊंगा। ठीक है, पहले हम आते हैं एक बार एमसीक्यूज पे। ये पेपर है मेरा 2024 का, इसी पैटर्न पैटर्न क्या, बहुत ज़्यादा प्रोडिक्शन है, ऐसा ही पेपर है। मेरी फिर से प्रिडिक्शन है, जितना मैंने एनालिसिस किया है 10 ईयर्स वाले सब कुछ करके, कि ये ही पेपर सेम टू सेम आपको 26 जाएगा, सेम ऐसे ही क्वेश्चंस। बेस्ट पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज हैज 75 technicians who are experts in pest control. The management decides to train these technicians again in order to keep pace with the growing technological changes and improve pest control techniques. What type of training should the management impart to these technicians? Job training. क्योंकि देखिए, सबसे पहला फर्स्ट यहाँ से साथ साथ समझ भी आता चलेगा। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हम एमसीक्यूज पढ़ रहे हैं, सारी डिवीजन भी हो जाएगी। जॉब ट्रेनिंग क्या होता है? Job training refers to the process of acquiring. Job training refers to the process of acquiring the skills, knowledge, and competencies necessary to perform specific tasks or functions within a job or profession. It can take various forms, including on-the-job training, classroom-based instruction, workshops, seminars, online courses, apprenticeship, and more. फिर से, job training refers to the process of acquiring the skills, knowledge, and competencies necessary to perform specific tasks or functions within a job or profession. It can take various forms, including on the job training, classroom based instruction, workshops, seminar, online courses, apprenticeship, and more. ठीक है, फर्स्ट का आंसर हो गया हमारा जॉब ट्रेनिंग। सेकंड, अ डिबेंचर इशूड बाय अ कंपनी, यही ले लेते हैं। A debenture issued by a company by creating a fixed or a floating charge on the company's assets is known as, अब इसका है हमारा mortgage debenture. A debenture issued by a company by creating a fixed or a floating charge on the company's assets is known as mortgage debenture. Repeating again, a debenture issued by a company by creating a fixed or floating charge on the company asset is known as a mortgage debenture. सबसे पहले जॉब ट्रेनिंग का क्या हो गया? जॉब ट्रेनिंग refers to the process of acquiring the skills, knowledge, and competencies necessary to perform specific task or function within a job or profession. It can take various forms, including on-the-job training, classroom-based instruction, workshops, seminars, online courses, apprenticeships, and more. अगली है ऑप्शन बी इज करेक्ट. Mortgage debentures are a type of debenture that is secured by a mortgage or charge on the assets of the issuing company. When a company issues mortgage debentures, it pledges certain assets such as land, building. जब भी कोई कंपनी अपना कोई एसेट गिरवी रखती है, तो वो कौन सा डिबेंचर इशू हो गया? mortgage debenture. Are a type of a debenture that is secured by a mortgage or a charge on the assets of the issuing company. A debenture issued by a company by creating a fixed or a floating charge on the company's assets is known as mortgage debenture. अगर कोई ऐसी ट्रेनिंग जो जॉब करते करते आप ले रहे हो, वो हो गई हमारी जॉब ट्रेनिंग। अगर कोई ऐसा डिबेंचर आपने दिया जहाँ पे फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज हो गया कंपनी पे, जहाँ पे आप कीवर्ड्स लेते चलो, जहाँ पे चार्ज वर्ड आ जाए वो है मॉर्टगेज डिबेंचर। ठीक है, जहाँ पे चार्ज वर्ड आ जाए मॉर्टगेज डिबेंचर। थर्ड, with reference to credit card, which one of the following statements is incorrect? ठीक है,
द कार्ड होल्डर मेक्स पेमेंट्स आफ्टर यूजिंग द कार्ड, बिल्कुल ठीक है। सम इंसेंटिव्स आर एंड गिफ्ट्स आर मेड अवेलेबल टू द कार्ड होल्डर, ठीक है। द कार्ड होल्डर हैज़ टू डिपॉजिट सम मनी इन एडवांस विद द इश्यूर बैंक, नो, ये गलत है। तो इसका आंसर है हमारा ये, कोई कार्ड होल्डर को पहले से कोई मनी डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं होती इश्यूअर बैंक को एडवांस में, ठीक है मेरी बात। द कार्ड होल्डर नीड्स नॉट टू डिपॉजिट सम मनी इन एडवांस विद द इश्यूअर बैंक, फीस लगती है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, बट ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो थर्ड ऑप्शन सी इज करेक्ट हमारा। अ क्रेडिट कार्ड डज नॉट रिक्वायर द कार्ड होल्डर टू डिपॉजिट मनी इन एडवांस विद द इश्यूअर बैंक, इंस्टेड द कार्ड होल्डर इज ग्रांटेड अ क्रेडिट लिमिट बेस्ड ऑन फैक्टर्स which such as credit worthiness and income, and they can use the card to make purchases up to that limit. The card holder is then expected to repay the borrowed funds, typically with the interest according to the terms of credit card and agreement. Got it? चलिए फोर्थ वाला लेते हैं। अ बिजनेस फर्म शुड हैव एक्स्ट्रा फंड्स टू मीट फ्यूचर इमरजेंसीज, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है। अगर एक बिजनेस फंड्स को इमरजेंसी के लिए पैसे चाहिए, बिजनेस फंड्स को इमरजेंसी के लिए, तो इमरजेंसी मतलब स्पेशल, ऐसे कीवर्ड ले लो, इमरजेंसी मतलब स्पेशल, इमरजेंसी मतलब स्पेशल, इमरजेंसी मतलब स्पेशल, तो कौन सी टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल हो गई? स्पेशल वर्किंग कैपिटल। Special working capital refers to the portion of working capital that a business sets aside specifically to address future contingencies or unforeseen circumstances. These funds act as a buffer to ensure the smooth functioning of operations during times of uncertainty or unexpected events. खाली MCQs ये नहीं होते कि MCQs से आपको वही आंसर सॉल्व होते हैं। MCQs का मतलब है एक तरह से रिवीजन कराना। हमारा फर्स्ट MCQ जॉब ट्रेनिंग, जॉब ट्रेनिंग की डेफिनेशन रिवाइज हो गई। सेकंड ऑप्शन बी हमारा मॉर्टगेज डिबेंचर, मॉर्टगेज डिबेंचर का मतलब समझ आ गया। ऑप्शन सी अ क्रेडिट कार्ड वाली फीचर समझ आ गई। फिर उसके बाद स्पेशल वर्किंग कैपिटल समझ आ गई। स्पेशल वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू द पोर्शन ऑफ द वर्किंग कैपिटल दैट अ बिजनेस सेट्स असाइड स्पेसिफिकली टू एड्रेस फ्यूचर कंटिजेंसीज और अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस। These funds act as a buffer to ensure the smooth functioning of operations during times of uncertainty or unexpected events, ठीक है। चलिए फिफ्थ वाला लेते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एज एक्यूरेट एज प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस, मैं इसको बिलीव करूंगा यस, क्योंकि देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस ना जो बने होते हैं वो एक फैक्ट पे बने हैं कि हाँ सच है, मैनेजमेंट के वो नहीं है। तो इसका है दे डील विद ह्यूमन बिहेवियर विच इज़ अनप्रिडिक्टेबल। फिर से principles of management are not as accurate as principles of science because they deal with human behavior which is unpredictable. आप कभी भी ह्यूमन के बिहेवियर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। 5 MCQs हो गए हमारे, ठीक है। अब थैंक यू बोल देना बस, अगर पेपर में लग गए ना तो थैंक यू बोल देना। बहुत स्ट्रेटजी बना रहा हूँ मैं इस बार पेपर्स में लगाने की। आर नॉट एज एक्यूरेट एज प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस बिकॉज दे डील विद ह्यूमन बिहेवियर विच इज़ अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है। चलिए अगले आते हैं। An awareness of a business environment enables an enterprise to take advantage of early opportunities, ठीक है, instead of losing them to the competitors. Which benefit of understanding the business environment is highlighted in the above case, ठीक है। अब जो सबसे पहला है ना इसमें, being the first to recognize, ऑप्शन सी being the first to recognize, which benefit of understanding the business environment is highlighted in the above case. फीचर्स हैं, एक आपका ना जो चैप्टर है बिजनेस एनवायरनमेंट, उसकी जो फीचर्स हैं और जो इम्पोर्टेंस हैं वो ध्यान से कर लो। बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर की जो फीचर्स हैं और जो वो है हमारी एडवांटेजेस, वो अच्छे से कर लीजिए, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसका है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब क्या हो गया? Being the first to recognize and exploit these opportunities allow an enterprise to establish itself as a market leader, capitalize on emerging trends, and build brand loyalty. By businesses can position themselves to seize opportunities before competitors do, thereby maximizing the chances of success and long term growth. जब किसी को फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है ना उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करने का, being the first to recognize and exploit these opportunities allows an enterprise to establish itself as a market leader, capitalize on emerging trends, and build brand loyalty. By staying proactive and agile in their approach, businesses can position themselves to seize opportunities before competitors do, thereby maximizing their chances of success and long term growth. Then यहाँ तक हो गए। तो सबसे पहला हमारा जॉब ट्रेनिंग हो गया, मॉर्टगेज डिबेंचर हो गया, द कार्ड होल्डर हैज़ टू डिपॉजिट सम मनी इन एडवांस विद, ये इनकरेक्ट था। कौन सी ऐसी वर्किंग कैपिटल है जो हमें फ्यूचर इमरजेंसी के लिए चाहिए? स्पेशल वर्किंग कैपिटल। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एज एक्यूरेट एज प्रिंसिपल्स बिकॉज दे आर डील विद ह्यूमन बिहेवियर विच इज अनप्रिडिक्टेबल। फिर उसके बाद आ गया हमारा फर्स्ट मूवर एडवांटेज। क्लियर? चलिए अगला लेते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स। रिसेशन इन
recession is an inherent constant in almost all manufacturing organizations. False. Recessions are a part of the broader economic cycle and can impact various sectors including manufacturing, but they are not a fundamental constant that manufacturing organization faces all times. ऐसा नहीं है कि recession is an inherent constant. Inherent means fundamentally नहीं है कि उनमें हमेशा होता ही होता है. As a function of marketing, warehousing creates time utility. ट्रू. वेयरहाउसिंग टाइम यूटिलिटी, टाइम पे गुड्स चाहिए, वेयरहाउस से निकालेंगे दे देंगे. वेयरहाउसिंग अलाउज बिजनेसेस टू स्टोर इन्वेंट्री एंड स्टॉक पाइल गुड्स अंटिल दे आर नीडेड. बाय डूइंग सो वेयरहाउसिंग हेल्प्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन द टाइम ऑफ प्रोडक्शन एंड द टाइम ऑफ कंजम्पशन. मैं फिर से एक बार बोलूंगा कि एमसीक्यूज का खाली ये मतलब नहीं होता कि वन मार्कर का आंसर. एमसीक्यू का मतलब है सारा रिवीजन कराना. रिसेशन वाला समझ आ गया. आर अ पार्ट ऑफ द ब्रॉडर इकोनॉमिक साइकिल एंड कैन इम्पैक्ट वेरियस सेक्टर्स इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग, बट दे आर नॉट अ फंडामेंटल कांस्टेंट दैट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन फेसेस एट ऑल टाइम्स. ट्रू. अगला, वेयर हाउसिंग क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी. यस, वेयर हाउसिंग क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी. ट्रू. ये वाला कब आ गया? हाँ जी. क्यों? वेयर हाउसिंग टाइम यूटिलिटी. वेयर हाउसिंग अलाउज बिजनेसेस टू स्टोर इन्वेंट्री एंड स्टॉक पाइल गुड्स अंटिल दे आर नीडेड. बाय डूइंग सो वेयर हाउसिंग हेल्प्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन द टाइम ऑफ प्रोडक्शन एंड द टाइम ऑफ कंजम्पशन. चलिए अगला लेते हैं. डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन इन एन ऑर्गेनाइजेशन. हाँ बिल्कुल ठीक है, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन इन एन ऑर्गेनाइजेशन. मैं आपको ना एक चीज़ बताता हूँ, जिनको भी बच्चों को मैनेजमेंट वाले चैप्टर्स में डाउट हो ना, POSDC, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग. फिर से POSDC, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग. ठीक है. Directing helps an organization to progress with the help of directing. Other managerial functions get initiated or operational. It helps the management to supervise, exchange information, guide and encourage people at work to perform in the desired way to achieve organizational aims and objectives. Directing helps an organization to progress. With the help of directing, other managerial functions get initiated and operational. It helps the management to supervise, exchange information, guide and encourage people to perform to perform in the desired way to achieve organizational aims and objectives. Done. फिर उसके बाद आता है कस्टमर ओरिएंटेशन इज अ मॉडर्न अप्रोच टू मार्केटिंग. ट्रू. कस्टमर ओरिएंटेशन, ग्राहक ही भगवान है. कस्टमर ओरिएंटेशन इन मार्केटिंग प्रायोरिटाइजेस अंडरस्टैंडिंग एंड मीटिंग कस्टमर नीड्स, फॉस्टरिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स एंड कंटिन्यूअसली अडैप्टिंग स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन कस्टमर फीडबैक एंड मार्केट डायनामिक्स, रिप्रेजेंटिंग अ मॉडर्न कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच टू business. Customer orientation in marketing prioritizes understanding and meeting customer needs, fostering long-term relationships and continuously adapting strategies based on a customer feedback and marketing dynamics. 8th वाला ले लेते हैं. assertion services cannot be standardized. नहीं यार, services are heterogeneous. सर्विसेज आर होमोजीनियस इन नेचर. नो, सर्विसेज आर हेट्रोजीनियस. सबके हिसाब से सर्विसेज अलग है. एक वर्ड होता है होमोजीनियस. होमोजीनियस का मतलब होता है सेम सेम सबके लिए, जबकि सर्विसेज आर हेट्रोजीनियस. तो assertion इज ट्रू. सर्विसेज कैन नॉट बी स्टैंडर्डाइज, सर्विसेज कैन बी स्टैंडर्डाइज. सबके हिसाब से अलग अलग हो सकती है ना. तो assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. Services are a heterogeneous, meaning they vary due to factors like the provider skills, customer preferences, and the specific context of service delivery. Each to standardize the service experience across different situations and individuals. This heterogeneity underscores the complexity of managing and delivering services effectively. Services are heterogeneous, meaning they vary due to factors like the provider's skill, customer preference, and the specific context of specific service delivery. Each interaction is unique, making it challenging to standardize the service experience across different situations and individuals. This heterogeneity underscores the complexity of managing and delivering services effectively. 9th का लेते हैं. डैश ऑर्गेनाइजेशंस आर फॉर्म्ड स्पॉन्टेनियसली एज अ रिजल्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन. इनफॉर्मल. ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपने आप बन जाती हैं एज अ फ्रेंडशिप बेसिस पे? इनफॉर्मल. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस आर फॉर्म्ड स्पॉन्टेनियसली एज अ रिजल्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन अमंग एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन. चलिए नेक्स्ट लेते हैं. डैश मैनेजमेंट एज अ डैश रेफर्स टू अ सिस्टमाइज्ड अगर वर्ड आ जाए इसका मतलब है डिसिप्लिन. कभी भी सिस्टमेटाइज वर्ड आ जाए इसका मतलब है डिसिप्लिन. मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन. मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन. ठीक है. डन. Organization and development of financial market has created a huge surge. Organization and development of financial market has created a surge in primary and secondary market. डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल, तो ये आ गया इकोनॉमिक इन्वायरमेंट. फाइनेंशियल वर्ल्ड आ गया ना, तो अगर कभी भी देखिए पेस्ले फाइनेंशियल आ गया, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट. फिर अगला लेते हैं. Miss Anamika visited a reputed dealer of electronic goods to buy a Bluetooth headset. The salesman at the shop forced her to buy a particular brand of headset. नहीं यार नहीं, वो फोर्स नहीं कर सकता ना शॉपकीपर आपको. राइट टू चॉइस है आपकी, राइट टू चॉइस. मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताऊं, एक बिजनेस इन्वायरमेंट वाला जो चैप्टर है ना पूरा अच्छे से कर लो. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. वेरी 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 कितने वेरी लिखवा लो. एक जो बैरियर्स है ना हमारे, एक्सक्यूज मी, हाँ जी विश्वजीत,
हाँ जी विश्वजीत हुकुम। गुड इवनिंग जी। हाँ जी मैं क्लासरूम से हाँ। मैं नहीं जाना हूँ, मैं क्लासरूम से ही हाँ। बस हूँ मेरे को बच्चे आ रहे हैं, लगभग 4:30 सलील ने आना है, फिर 5 आरुष ने आना है, फिर आदित्य ने बदा फोन सीगा 6 बजे आने ली। हाँ जी। हम्म। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਹੁਣੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਟਵਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਲਰਨ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਹੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, मैं ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ठीक है ना। ओके जी। सॉरी, एक ये बैरियर्स वाला है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 13th का, विच बैरियर टू कम्युनिकेशन अराइजेज व्हेन द सेंडर एंड रिसीवर इंटरप्रेट अ मैसेज डिफरेंटली। सेंडर एंड रिसीवर इंटरप्रेट सिमेंटिक। जब उसने कहा कुछ मैंने समझा कुछ, ऐसे लगा लो, उसने कहा कुछ मैंने समझा कुछ। कौन सा बैरियर है? सिमेंटिक बैरियर है, ठीक है। उसने कहा कुछ मैंने समझा कुछ, कौन सा बैरियर है? सिमेंटिक बैरियर है। 2024 के पेपर के ये एमसीक्यूज थे मेरे, ठीक है, 2024 वाले पेपर के। अब मैं एक और पेपर के बस अभी एमसीक्यूज ला रहा हूँ पहले, तो सारे ना एमसीक्यूज करवा रहा हूँ आपको। बच्चों बार बार बोलूँगा एमसीक्यूज से ये मत समझना कि मैं आपको वो इतने नंबर का करवा रहा हूँ, मैं करवाऊंगा सारा ही पहले, पर एमसीक्यूज से एक बार सारी रिवीजन भी हो जाए और जो जो मेन है वो होते चलें, थोड़ा सा इंटरेस्ट बन जाएगा, ठीक है। फिर आगे करते चलते हैं।